very big hello to all my students. I am here with the solutions of ANTS paper number 4 with the botany part. Let's start the solutions without wasting time. The very first question out here of section A is, given below are two statements. Those statements here, mycoplasma, what is mycoplasma, also known as PPLO, can pass through less than 1 micron filter size. सबसे पहले when we talk about that, what is the size of a bacteria? A normal bacteria happens to be, लिखा है ना बुक में, the typical size of a normal bacteria is 1 to 2 micrometer. And what about the mycoplasma? The mycoplasma happens to be कितना? It happens to be 0.01 micrometer. So can a mycoplasma pass through less than 1 micron filter size? Obviously yes, because वो खुद कितना है? 0.1 micrometer. So that is correct statement. Mycoplasma are bacteria, obviously these are bacteria, prokaryotes with a cell wall. Is this right? No, it is wrong, because mycoplasmas are without the cell wall. तभी हम इसको jokers भी बोलते हैं, pleomorphic भी बोलते हैं. So what happens? This is a wrong statement. तो पूछा क्या है? In the light of the above statements, choose the most appropriate answer. Both statements are right? Obviously no. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So therefore the answer for 101 happens to be the C option. Is that okay? Fine. The next one. Which of the following statement about the inclusion bodies is incorrect? सबसे पहले inclusion bodies किसके अंदर होती हैं? Inclusion bodies are the part of the bacteria. ठीक है? Bacteria के अंदर inclusion bodies जो होती हैं reserve food material होता है. And ये होता किस में है? In the cytoplasm. But are these bodies having what? A membrane? In case of bacteria या prokaryotes हमारे पास membrane bound bodies होती ही नहीं, organelles होता ही नहीं है, कोई भी नहीं है. But अगर मैं reserve food material बोलती हूँ तो कौन कौन सा reserve food material है? It is said to be phosphate granules, it is said to be what? Cyanophycin granules, है ना? ये सारे हमारे पास में reserve and glycogen granules. So let's talk about that. And पूछा क्या? Incorrect. अभी मैंने आपको क्या बोला? They lie free in the cytoplasm, correct? These represent the reserve food material in the cytoplasm, correct? तीनों बता दिए, glycogen, cyanophycin and phosphate granules. They are not bound by any membrane, correct? अब ऊपर जा रही हूँ, वैसे भी हमने बोल्ड किया, वो आपको पता लगना चाहिए. They are involved in ingestion of the food. Obviously, ingestion of the food करते नहीं है. अगर आप पूछो, वैसे ingestion word किसके लिए यूज करते हैं? Animal सब के लिए. Which takes in, यहाँ पे अंदर गया, फिर हमारे पास डाइजेशन हुआ, फिर इजेशन हो गया, वो सारे को बोलते हैं. बट अगर मैं प्रोकैरियोट्स में बोलूं तो कौन करता है? सरफेस से करता है, अगर वो हेटेरोट्रॉफिक है तो. फाइन. सो दिस इज इनकरेक्ट फॉर इट. देयरफॉर द आंसर फॉर 102 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. 103. Chromosomes identity is lost as discrete unit. Discrete मतलब distinct units या elements in. आपको पता है, in case of interphase we are going to have long thread-like structures. What is that known as? Chromatin fibers. जैसे वो जाता है प्रोफेज में तो कंडेंसेशन स्टार्ट करता है, एंड कंडेंसेशन स्टार्ट करके क्रोमोसोम्स बनता है. तो इट इज नॉट लॉस्ट, इट इज बीइंग फॉर्म्ड आउट हियर. फिर मेटाफेज में तो हम सबको पता है सबसे कंडेंस्ड क्रोमोसोम होते हैं. फिर एनाफेज में भी हमारे पास क्रोमोसोम है, दे स्टार्ट सेपरेटिंग. बट जब हमारे पास टीलोफेज आता है, जब एंड आता है, दिस इज उल्टा ऑफ दैट. यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे डीकंडेंसेशन होता है, मतलब वो फिर से पतला पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्रोमेटिन बनते हैं. तो यहाँ पे लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स. तो अपनी आइडेंटिटी लॉस करते हैं कहाँ पे? टीलोफेज. द आंसर फॉर 103 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. Which of the following components provide sticky character to bacterial cell? सबसे पहले बैक्टीरियल सेल जब स्टिकी है, that happens to be from the outermost portion. So that means in case of bacteria we are having what? Cell envelope. Cell envelope का 3 components हैं. कौन कौन? ग्लाइकोकैलिक्स प्लस कौन? सेल वॉल प्लस कौन? सेल मेम्ब्रेन. ये तीनों हैं.
इनमें से स्टिकी नेचर कौन देता है? इट इज ओनली द ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स अगर आपको पता है, देयरफॉर द आंसर आउट हियर हैपेंस टू बी सी ऑप्शन। बट ग्लाइकोकैलिक्स इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, क्या क्या याद है हमको? स्लाइम लेयर एंड द कैप्सूल। यहां पर हमारे पास इतना ही लिखा हुआ है, बट व्हेन आई गो टू द मॉलिक्यूलर बेसिस आउट हियर, तो हमने क्या पढ़ा? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं, दैट मींस डिजीज कॉजिंग होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस है ना, दोनों वेराइटीज आर एंड द एस टाइप ऑफ इट। बट यहां पे द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। मेम्ब्रेन तो बहुत अंदर है, वो नहीं दे सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, सेल मेम्ब्रेन ये नहीं कर सकता, सेल वॉल ये सब प्रोटेक्शन करते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड्स द स्टिकी नेचर टू दैट, सो देयरफॉर द आंसर फॉर दैट इज द सी ऑप्शन। 105, the structure that helps some bacteria to attach to the rocks and or the host tissues are, चलो अटैचमेंट में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, मीजोसोम्स। व्हाट आर मीजोसोम? ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है जो इन्वेजिनेशंस देता है, जो कि वेसिकुलर फॉर्म में, हमारे ट्यूबुलर फॉर्म में, लेमिनर फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं मीजोसोम्स। सो ऑटोमेटिकली ये अटैचमेंट में तो अंदर है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड होल्ड फास्ट, याद करो कहां पे होल्ड फास्ट है? होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड द ब्लेड, ये कहां पे पढ़ा हमने? फियोफाइसी, तो बैक्टीरिया का पार्ट ही नहीं है। राइजोइड्स, राइजोइड जो होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव पार्ट है बैक्टीरिया सब में, अगर आपको सॉरी ब्रायोफाइट सब में है, अगर आपको बात याद है ये थैलॉइड बॉडीज है, यहाँ पे राइजोइड्स है, बिकॉज क्या कहते हैं ब्रायोफाइट सब में क्या होता है, क्या है हमारे पास? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर नॉट हैविंग रूट्स, दे आर हैविंग रूट लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज व्हाट? राइजोइड्स। तो ये सब भी आंसर नहीं है। फिम्ब्री, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिम्ब्री? फिम्ब्री आर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्रश के जैसे स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग इन व्हाट? अटैचमेंट, किसको? रॉक्स को, होस्ट टिश्यू को, ये सब है। तो therefore the answer for that happens to be 105 का ऑप्शन नंबर डी। फाइन, चलिए 106, क्रोमैटोफोर्स। क्रोमा, colored, this means this is colored portion. अब क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन मूवमेंट? ऑब्वियसली नो। अगर मूवमेंट होता तो मेरे पास ऑप्शन सिलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया कुछ कुछ होता। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। अभी सबसे पहले तो क्लियर नहीं किसके लिए है, और अगर रेस्पिरेशन होता तो मैं किसके बारे में बताती? रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया लिखती या मेरे पास मीजोसोम्स लिखती, डिपेंडिंग अपॉन किसके अंदर। ग्रोथ, ऑब्वियसली ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है, हमारे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब हेल्प करता है ग्रोथ में। बट अब मेरे पास आंसर क्या बचा? फोटोसिंथेसिस। अब लेट्स टॉक अबाउट दैट क्रोमैटोफोर होता किसमें? क्रोमैटोफोर इज अगेन अ फीचर ऑफ द प्रोकैरियोट्स। कौन सा? प्रोकैरियोट्स, जो कि खाना बना सकता है, जो कि क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, दैट मीन्स खाना बना सकता है। एंड द मेन ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट व्हिच इज सेड टू बी ऑक्सीजेनिक हैपेंस टू बी साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के पास में यहाँ पे क्या है? इट इज हैविंग व्हाट? इट्स हैविंग क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स है, ऑटोट्रॉफिक है, खाना बना सकता है, दैट मीन्स पिगमेंट्स है, हेल्प्स इन व्हाट? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर भी हमारे पास सर्टेन स्ट्रक्चर्स है, इनफोल्डिंग्स है, दीज आर हैविंग दिस pigments out here and that is helping in photosynthesis। तो हो सकता है नेक्स्ट पेपर में हम दे दे क्रोमैटोफोर्स आर प्रेजेंट इन, तो आपके पास आंसर क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ भी लिख सकते हैं, या नॉस्टॉक एनाबिना कुछ भी लिख सकते हैं। सो हियर इट इज सीन, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? दिस पोर्शन एंड हेल्पिंग इन व्हाट? इट्स हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस। 107, which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबको पता है, रेटिकुलर नेटवर्क है, पूरा स्प्रेड है सेल के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। इज इनकरेक्ट, अब ये करना है आपने। हम सबको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक, एक स्मूथ, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रफ क्यों है? बिकॉज इट्स हैविंग राइबोसोम्स अटैच्ड टू दिस इज राइट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट। ये मेरे पास नेटवर्क है ऐसे करके, इसके ऊपर में क्या है? राइबोसोम्स, राइट है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, करेक्ट है, प्रॉब्लम नहीं है। In prokaryotes only RER is present. एक बार सोचते हैं, SER is the site of lipid synthesis, correct? अगर RER बोलती तो किसका साइट है? प्रोटीन सिंथेसिस। Coming back to this option, prokaryotes are having RER। आपको लग गया RER है कि SER है?
सबसे पहले इंटेलिजेंट स्टूडेंट को क्या याद होना चाहिए? वी डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. दिस ये जो है हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज व्हाट? अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी प्रोकैरियोट. तो मेड बी RER, मेड बी SER, दोनों एब्सेंट होना पड़ेगा यहाँ पर. देयरफॉर द आंसर फॉर दिस इज, इनकरेक्ट आंसर फॉर दिस इज व्हाट? ऑप्शन नंबर C. कुछ भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन happens to be the C option. Fine. Multinucleated condition arises in liquid endosperm of the coconut when. चलो इसको तो पढ़ते हैं, पर ऐसे कोकोनट छोड़ो. मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कब, कंडीशन कब होती है? ये मेरे पास हुआ सेल, इस सेल ने किया व्हाट? सेल डिवीजन. इसने किया व्हाट? कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस किया तो क्या हो गया? इसके पास 2 न्यूक्लियस. एंड अब क्या किया? साइटोकाइनेसिस नहीं किया. नो साइटोकाइनेसिस, ठीक है, नहीं किया. तो उस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गया. फिर से इसने कैरियोकाइनेसिस किया, साइटोकाइनेसिस नहीं किया. तो मेरे पास क्या आ गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. तो लेट्स गो फॉर इट. दैट मींस कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा. अच्छा से पूछा राइट. अच्छा, कंडीशन क्यों हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस आफ्टर मियोसिस 2. अगर वो फॉलो हो रहा है तो नॉर्मल सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस अपना ही हो गया. तो दिस कैन नॉट बी द आंसर फॉर इट. इसमें लिखा फॉलोड, मैंने बोला नॉट फॉलोड. Meiosis is one is followed by many cytokinesis. आपको बता दूं meiosis 1 के बाद cytokinesis होता ही नहीं है. तो this cannot be the answer for that. Karyokinesis is not followed by cytokinesis in mitotic division. This is right. यही मैंने आपको बताया. इसमें अब ये तो राइट आंसर हो गया. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द C ऑप्शन. बट मुझे बताओ क्या इस कंडीशन को इन कोकोनट क्या वर्ड लिखा है? इसमें लिखा है syncytium या cytium. So this condition in case of coconut is known. So that is what? Multinucleated condition. और वो कैसे हुआ? Karyokinesis हुआ, cytokinesis नहीं हुआ. तो next time I may not write this, I may use this word in coconut is because of what? The answer still happens to be the C option. Many uninucleated cells undergoes fusion. नहीं, उससे कुछ नहीं होता. Fusion से हमारे पास में जब fusion होता है तो हमारे पास में दोनों parts होता है. So that is wrong out here. So this is not the answer. The answer for that is the C option. 109. Match the list 1 with the list 2. यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है. आपके क्वेश्चन पेपर में करेक्ट ही होगा, फिर भी देख लीजिए. क्रिस्टी थैलाकॉइड, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्रिस्टी है, फिर थैलाकॉइड्स है, फिर सेंट्रोमियर है, एंड देन सिस्टर्नी है. ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चलेगा. प्लीज बेयर विद मी, बट अदरवाइज पेपर में आपको राइट मिलेगा. अब देखते हैं. सबसे पहले ये सब कुछ होता है क्या? क्रिस्टी. Where do you use the word Christi? ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इनफोल्डिंग्स ऑफ द मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन, उसको बोलते क्रिस्टी. सो किसमें दिखा हमको? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है. नेक्स्ट थैलाकॉइड्स. When I talk about the word क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में हमारे पास में sac-like structures are placed one above the other, जिसके अंदर में हमारे पास जो मिलके क्या बनाता है? ग्रैनम. इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है. तो where do you have it? क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है. सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमैटिड है. दिस पोर्शन इज नोन एज व्हाट? इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर. सिस्टर्नी, अगर आपको सिस्टर्नी याद है, दिस इज रिलेटेड विद व्हाट? गोल्गी बॉडीज. ठीक है ना. गोल्गी बॉडीज में हमारे पास सिस्टर्नी आर फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स. ये ऐसे हैं, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड. ये ऐसा पोर्शन है, अगर आपको थोड़ा सा याद है, डायग्राम बना हुआ है. दिस इज नोन एज द सिस फॉर्म ऑफ इट. दिस इज नोन एज द ट्रांस फॉर्म ऑफ इट. व्हाट इज दिस आल्सो नोन एज? कॉन्वेक्स. व्हाट इज दिस नोन एज? कॉनकेव. व्हाट इज दैट नोन एज? फॉर्मिंग फेज. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैच्योरिंग फेज. ये हमारे पास कहां पर होता है? इट इज सीन इन केस ऑफ द गोल्गी apparatus. लेट्स नाउ मैच इट. क्रिस्टी. क्रिस्टी भी मैंने क्या बताया? माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है. तो ए के साथ मैं क्या कर सकती हूँ? दिस. तो ए दिस. फाइन. देन थैलाकॉइड्स. फ्लैटेंड, ये भी पोर्शन यहां जाएगा. फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन द स्ट्रोमा प्लास्टिड्स. सो दैट मींस थैलाकॉइड का 2 का क्या हो गया? 4. ठीक है. नेक्स्ट सेंट्रोमियर इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ द क्रोमोसोम. तो 3 का क्या हो गया? 1. मैं यहां पे लिख देती हूं. ए का मेरे पास 3, 2 का मेरे पास 4, 3 का मेरे पास 1,
D का मेरे पास disc like stack like structure in Golgi apparatus 2. So look at the answer, A3, B4, C1, D2. That means the answer for the question happens to be option number A. Clear? Chal. Question number 10. The organelles that are included in the endomembrane system are. सबसे पहले endomembrane system. What does this line tell you? Endomembrane system में NCERT writes that the different organelles are there which differ in structure and function. But endomembrane में we are having certain organelles जो structure में different हो सकते हैं, but they function in a coordinated manner. अब वो है कौन कौन? We are having 4 of it. कौन कौन? We are having what? Endoplasmic reticulum. We are having what? Golgi bodies. We are having lysosomes, and we are having what? The vacuoles. ये चारों मिलके बनाते हैं, and the answer therefore this is included in endomembrane. Additional part क्या है? Function in a coordinated manner. Golgi complex right है, mitochondria is wrong, ribosome is wrong, and lysosome is correct. Golgi complex right है, endoplasmic right है, wrong हो गया mitochondria. And this is right. Endoplasmic reticulum right है, mitochondria wrong है. अच्छा बुक में एक और चीज लिखा, mitochondria, plastid, peroxisomes are not a part of it. Why? They do function, but independent function करता है, इनके साथ coordinated नहीं है. So that is it's not a part of it. Obviously ribosomes is not a part. बचा क्या? Endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, vacuoles. Therefore the answer for 110 happens to be the D option. But इससे एक और क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेटर तो बता दिया फंक्शन वाइज. एक और क्वेश्चन आता है, नेम द सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स. ये चारों के चारों आउट हियर आर सेड टू बी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स. ठीक है? Whereas when you talk about what? Ribosome, non-membranous. When you talk about mitochondria, double membranous. ठीक है? चल. And what is the membrane of the क्या कहते हैं vacuoles known as? What is that known as? Tonoplast. 111. Significance of mitosis. Mitosis करते हैं, उसका significance क्या है? Cell repair. Obviously यहाँ पे चोट लगी, चोट लगने पर नया सेल बनता है. What is the cell repair? Correct. Restoration of nucleocytoplasmic ratio. Now what is this? आप सबको पता है, a cell which is smaller, which undergoes mitosis, उसके अंदर nucleoplasm to the cytoplasm ratio जो है is high. That means we are having more of the nucleoplasm than the cytoplasm, so that is higher in case of this. But जैसे वो सेल साइकिल के लिए तैयार होता है, इंटरफेस में आपने एक लाइन पढ़ा है, the cell growth is continuous. When you talk about the word cell growth, what does the cell growth mean? It means the cytoplasmic growth. तो साइटोप्लाज्म ग्रो करने लग गया. अब आपका न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म रेशियो इज डिस्टर्ब्ड आउट हियर, disturbed out here. तो उसको वापस सेम लाने के लिए we are having what? Mitosis. So this also happens to be correct. Restore कर दिया उस रेशियो को, which is correct. Is the main cause of production of variation. वेरिएशन, एक सेल से 2 बनाया, 2 से 3 बनाया. माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन मींस सिमिलर टाइप ऑफ जीनोटाइप. तो सब सिमिलर तो वेरिएशन कैसे आएगा? सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट, बट दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, बिकॉज हमको पूछा गया एक्सेप्ट मैंने नहीं करा है. ये कौन कराता है? ये मियोसिस कराता है. जब मैं मियोसिस का सिग्निफिकेंस बोलूंगी, द वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ दैट इज व्हाट? वेरिएशंस. प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट. Yes, it is equational division, so genetic component in the daughter cells is correct. Therefore, the answer for 111 happens to be the C option. Fine. Let's talk about that. It's a diagrammatic question. ये बना हुआ diagram आपके पास में वहाँ पर. Let's talk about that. Given is a diagram out here and organelle A को पहचानना, इसको पहचानना. अब थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया था. एक मेरे पास ये ऐसा डायग्राम है जिसके इनर मेम्ब्रेन में मेरे पास इन्वेजिनेशंस है ना. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये किसका डायग्राम था? माइटोकॉन्ड्रिया का. ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया. फिर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया था विच इज ऐसा करके. व्हाट इज दिस? मेरे पास में क्या है? सिस्टर्नी. किसका डायग्राम था? गोल्गी बॉडीज का. गोल्गी बॉडीज जो बोलते हैं आप, उसका था. ठीक है ना. फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है और नेटवर्क आउट हियर पूरा सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इफ इट इज हैविंग दिस ग्रैन्यूल्स दैट इज रफ, अगर विदाउट दैट इज स्मूथ. ठीक है. और ऐसा जो है मेरे पास में क्या है? दिस आर नोन एज लाइसोसोम्स, जिसके अंदर में
जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला ऑप्शन है ये वाला, ये किससे रिजेंबल कर रहा है? इससे कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब एनर्जी बनाना, एंड व्हाट इज दैट एनर्जी? इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। गोल्गी बॉडीज प्रोवाइड्स पैकेजिंग मटेरियल विच इज करेक्ट, गोल्गी बॉडीज यही करता है, बट वो डायग्राम में वो पोर्शन नहीं है। नेक्स्ट, लाइसोसोम सिक्रीट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच इज अगेन करेक्ट, बट वो डायग्राम में वो उसको नहीं दिखा रहा। लाइसोसोम्स होता तो ये वाला पोर्शन होता, ठीक है, और अगर मेरे पास गोल्गी होता तो ये वाला गोल्गी होता। दिस इज गोल्गी बॉडीज, this is lysosome. Next, endoplasmic reticulum synthesis of lipids कौन करता है? स्मूथ वाला। तो मेरे पास यहाँ पर जो बनाया, ये जो मैंने बनाया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम्स है तो रफ है, ये क्या है? स्मूथ है। ये ऑप्शन सारे राइट है, बट दिस वाला जो डायग्राम है ये इसके लिए करेक्ट नहीं है। इसके लिए करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। Therefore the answer for 112 happens to be the A option. Fine. 113. Which one of the following has its own DNA? हम सबको पता है न्यूक्लियस को छोड़ के भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हमारे पास होता है, या क्रोमोसोम हमारे पास होता है। किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट आंसर। डू वी हैव दैट इन द राइबोसोम्स? नो। लाइसोसोम्स? नो। पेरोक्सिसोम? नो। Answer for the question happens to be A option, but let's talk about that a little bit. Other than mitochondria कोई ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास होता है? Yes. कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। बट कैसा होता है इसके अंदर? सपोज दिस द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज, अच्छा ऐसे ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द क्रिस्टी या इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर ऐसा होता है। ऐसा मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कि अगर आप प्रॉपर्ली जाओ तो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ऐसा। Okay, so this is similar to the prokaryotes. तो अगर मैंने पूछा which the following is having double standard circular DNA, तो आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या आएगा? तो हमारे पास ऑप्शंस में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया, सब कुछ आ सकता है। तो इन सबके पास में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, बट यहाँ पे इसका अपना डीएनए है, किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। दैट इज व्हाई इट्स आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सो इज दिस आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, माने बाकी तो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट, पर अपना भी कुछ कुछ काम कर सकता है, ठीक है। चलिए 114, which one of the following constituent is not a constituent of the cell membrane? चलिए अब सेल मेम्ब्रेन का बात कर लो। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में क्या है? वी आर हैविंग, बीच में हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होती हैं। इसके पीछे में क्वेश्चन में डिटेल में सिखाऊंगी। ये मेरे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं, दोनों साइड में फॉस्फोलिपिड्स हैं हमारे पास में, ठीक है ना। और प्रोटीन्स मेरे पास यहाँ पर है, क्लियर है, और कुछ प्रोटीन्स मेरे पास यहाँ पर भी हैं। फाइन। तो डू वी हैव ग्लाइकोलिपिड्स? यस। अब ग्लाइकोलिपिड्स तो मैंने नहीं बोला, हमको ये भी पता कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। दैट कार्बोहाइड्रेट अगर वो लिपिड पे लग जाता है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, अगर प्रोटीन पे लग जाता है तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। फॉस्फोलिपिड्स तो पता ही है, पूरा फॉस्फोलिपिड्स है। कोलेस्ट्रॉल भी होता है बीच बीच में यहाँ पर। व्हाट डज इट डू? स्टेबिलिटी देता है। तो कौन नहीं है पार्ट ऑफ इट? प्रोलिन। What's the proline? It happens by amino acid. So this is not a part of. So, ठीक है? So answer for 114 happens to be the B option. चलिए, in fluid mosaic model of plasma membrane, अभी मैंने बोला था ना, अब मैं ठीक से पढ़ाती हूँ आपको। देखिए, ये मेरे पास में फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड के पास में हेड और टेल है। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है, दो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर्स है। दिस पोर्शन इज सेड टू बी द हेड, एंड दिस हेड हैपेंस टू बी hydrophilic. When I talk about the word hydrophilic, that means water loving. But it is a bilayer. यहाँ पे भी मेरे पास में फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। Fine. That means ये मेरे पास ये मेरे पास से हाइड्रोफिलिक हो गया। ये पोर्शन क्या है? This is the tail, which is said to be what? Hydrophobic. ठीक है। अब मेरे पास में क्या बचा वहां पर? मेरे पास प्रोटीन बचा। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट आउट हियर, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट आउट हियर। दैट मींस साइड्स में एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट आउट हियर, कुछ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट आउट हियर। चलो देखते हैं क्या बता रहा है। एंड व्हाट इज दिस मॉडल नोन एज? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, लिक्विड वाला मॉडल। द फॉस्फोलिपिड्स आउट हियर आर शोइंग दैट फ्लूइडिटी नेचर। और कौन सा? क्वासी फ्लूइड। व्हाट इज क्वासी फ्लूइड? सेमी फ्लूइड। क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट शोज यू क्वासी फ्लूइड नेचर? इट इज द फॉस्फोलिपिड्स।
द अपर लेयर इज नॉन पोलर, तो मैंने क्या बोला, अच्छा ये जो हाइड्रोफिलिक है उसको हम लोग पोलर बोलते हैं, बट द अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। अब हमारे पास अगर वो इसको मीन कर रहे हैं, पहली बात तो इसको देखो, अपर लेयर नॉन पोलर, हमारे पास में अपर लेयर क्या है, नॉन पोलर नहीं। अगर पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोफिलिक ये दोनों वर्ड मैच नहीं करता, सो दिस इज रॉन्ग। It should be polar and hydrophilic, non-polar and hydrophobic. तो this is wrong. Upper layer is polar, fine, and hydrophobic. फिर ये मैच नहीं कर रहा है, तो wrong है। तो head is polar, hydrophilic, tail is hydrophobic and non-polar. Next देखो, phospholipid forms a bimolecular layer in the middle part. Yes, this is the middle part. That means जब उसने इसको middle part बोला, so what does it mean? ये upper and lower ये हो रहा है यहाँ पर, but यहाँ पे it forms what? The middle part out here and forms what? Bimolecular layer. Yes, मेरे पास दो layers हैं इसकी, तो this is right. प्रोटीन्स फॉर्म द मिडिल लेयर, प्रोटीन मिडिल लेयर नहीं, अगर वो अपर बोल रहा है तो ये दोनों तो प्रोटीन एक्सटर्नल है, एक्सट्रिंसिक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज करेक्ट। बट यहाँ पर मैंने मिडिल लेयर नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग आउट हियर। सो द आंसर फॉर द 115 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज विद द वर्ड हाइड्रोफोबिक होने से नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक होने से पोलर, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। एंड फॉस्फोलिपिड यहाँ पे बाइमोलिकुलर बना रहा है, एंड प्रोटीन हम मिडिल लेयर नहीं बना रहा, मिडिल में है थोड़ा बहुत प्रोटीन, पूरा लेयर तो नहीं बनाता, ठीक है। तो वी मे हैव इंट्रिंसिक वाला प्रोटीन टू, बट वो लेयर के फॉर्म में नहीं है। सो देयरफॉर द आंसर फॉर 115 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। 116, algae have cells made up of, actually cell wall, made up of, what is this made up of? It is made up of what? अच्छा, एक नॉर्मल जो होता है हमारे पास में सेल वॉल, सेलुलोज का बना होता है, हेमीसेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है एंड प्रोटीन, ये नॉर्मल सेल वॉल है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन करेक्ट है। अब इन द एल्गी, आपको पता है सब एल्गीज में थोड़ा थोड़ा अलग पोर्शन है। सेलुलोज इज अ कॉमन, बट जनरल एल्गीज आर हैविंग सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैग्नेन्स, व्हिच इज करेक्ट, फाइन। किसी किसी के पास हमारे पास हेमीसेलुलोज नहीं है, किसी के पास हमारे पास प्रोटीन नहीं है। सो फॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लाइन है एनसीईआरटी की, आई होप यू कैन रीड इट। बट अगर बाय चांस मैं आपको बोलती हूँ द सेल वॉल ऑफ फियोफाइसिन एल्गी इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेलुलोज लिखोगे और क्या लिखोगे, एल्जिन। अगर मैं बोलती हूँ रोडोफाइसी तो क्या लिखोगे, सेलुलोज और क्या लिखोगे वहां पे, अगर कैराजिनिन, तो इट वैरीज। अगर मैं बोलती कारा तो क्या लिखोगे, along with this क्या है हमारे पास सेलुलोज के साथ में, we are also having what, कैल्शियम कार्बोनेट। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एल्गी आया तो योर आंसर कैन वेरी, बट कुछ नहीं नाम से आया तो योर आंसर हैपेंस टू बी दिस व्हिच इज रिटन इन द सेल चैप्टर, फाइन। 117, मैच द फॉलोइंग, बस थोड़ा सा आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है, पेपर में ठीक है। चलिए, this is regarding the cell cycle, just have a look for it। ये मेरे पास अगर सेल साइकिल है, if I start with what, if I start with the G1 phase, फिर मेरे पास क्या है S phase, फिर मेरे पास क्या है G2 phase, फिर मेरे पास क्या है M phase, ठीक है। अब G1 phase के अंदर में हमारे पास में एक G0 phase भी होता है, क्लियर विद दिस। चलो देखते हैं S phase, S phase क्या काम करता है, S phase is known for DNA synthesis। तो देखो DNA डुप्लीकेशन, तो S के साथ मेरा क्या बैठता है फोर्थ, तो A के साथ मैंने A के साथ फोर्थ ऑप्शन, फाइन। अब आया मेरे पास में G2, अब देखिए G2 में मेरे पास क्या लिखा, प्रोटीन सा सिंथेसाइज, आंसर है कि नहीं, सपोज आपको नहीं आता। इनएक्टिव फेज, आई होप सबको पता है, दिस पोर्शन हैपेंस टू व्हाट, द सेल साइकिल। ये जो बाहर निकल गया, तो ये बाहर निकल गया मतलब क्या हुआ, इनएक्टिव स्टेज हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूसेंट स्टेज, इसको हम G0 स्टेज भी बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेज। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसको अज्यूमिंग दैट आपको नहीं आता, आगे चलते हैं। G1 फेज, मेरे पास क्या बचा, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ये मेरे पास क्या हुआ, माइटोसिस और क्या है, इनिशिएशन ऑफ दिस। तो इन दोनों के बीच में S और इसके रेप्लिकेशन और इसके बीच में क्या आ रहा है, G1। सो आंसर फॉर दिस डी ऑप्शन हैपेंस टू व्हाट, 3 वाला। अब मेरे पास क्लियर हो गया, अगर मेरे पास कंफ्यूजन है नहीं था तो फिर वैसे भी मुझको मालूम होना चाहिए G2 फेज में प्रोटीन सा सिंथेसाइज,
ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, प्रोटीन सिंथेसिस occurs in this phase. तो लेट्स गो फॉर द ऑप्शन, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3. आपको एलिमिनेट करके भी जा सकते हो, सीधा आंसर आता तो वेरी फाइन. G2 मेरे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये G1 मैंने आपको बता दिया एंड सो ऑन. फाइन. चलिए, a fruit fly मतलब ड्रोसोफिला has 8 chromosome, that means twice in है ड्रोसोफिला. क्रोमोसोम नंबर कितना है? 8. वैसे भी हम सबको पता है 4 pairs of chromosome करेक्ट है. During the interphase of mitosis, the number of chromosome at the G1 phase is 8. What would be the chromosome after the S phase? हमको मालूम है S phase जो होता है इसमें डुप्लीकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ द DNA. डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, जिसको हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी बोलते हैं, बट क्रोमोसोम डू नॉट डुप्लीकेट. सो दैट इज व्हाई क्रोमोसोम अगर G1 में इतना है तो आफ्टर एस फेज में भी 8 का 8 ही रहेगा. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. हाँ, अगर मैं डीएनए की बात करती उसमें 8 मैं पीजी डीएनए बोलती तो मेरे पास 16 पीजी डीएनए हो जाता, बट मैंने वो बोला ही नहीं. देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. A stage of mitosis is shown in the diagram. Which stage is it and what is the characteristic? सबसे पहले when you see that, हमारे पास सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पर है? बीच में. What is that बीच में known as? Equatorial plate. तो हमारे पास में आ गया. And what is that phase known as? Metaphase. तो सबसे पहले मैं मेटाफेज देखूंगी. अब मेरे पास मेटाफेज तो 2 आ गए, मेरे पास एनाफेज नहीं है, ये आई कैन एलिमिनेट दैट, आई कैन एलिमिनेट दैट, ये मेरे पास है ही नहीं. तो मैं किस पे जाऊंगी? मेटाफेज में. अब मेटाफेज में क्या है देखो, स्पिंडल फाइबर तो बना है, अटैच टू द काइनेटोकोर, ठीक. सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमेटिड सेपरेट, वहां तक ठीक था, बट ये स्प्लिट एंड वो कहां पर होता है? द स्प्लिटिंग इज सीन इन केस ऑफ एनाफेज. दैट मींस अगर मेरे पास एनाफेज यहां होता, ये लाइन करेक्ट होती, बट फिर भी ये डायग्राम उसका नहीं होता. अब मेरे पास सेकंड वाला क्या है? मेटाफेज है. क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर. यस, इट इज द स्पिंडल इक्वेटर, मेटाफेसिक प्लेट, कुछ भी बोलो. एंड मेड अप एंड द क्रोमोसोम इज मेड अप 2 सिस्टर क्रोमेटिड. यस, यहां पर अगर आप देखो तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं यहां पर, तो यहाँ पे अटैच्ड है हमारे पास में. सो दैट इज द राइट आंसर. एनाफेज तो है ही नहीं, एनाफेज में तो स्प्लिटिंग करके जा रहा है. सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट एंड स्टार्ट, व्हिच इज करेक्ट, पर ये डायग्राम उसका नहीं है. लेट प्रोफेस क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, दैट इज रॉन्ग. तो मेरे पास आंसर क्या बचा? द आंसर फॉर 119 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. ठीक है, चलिए. 120, the appearance of recombination nodule. अब ये recombination nodule क्या कराएगा? recombinase एंजाइम करवाएगा. क्या करेगा? रिकॉम्बिनेशन. तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे रिकॉम्बिनेस एंजाइम रिकॉम्बिनेशन करवाता है. एंड व्हाट डज इट मीन? क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा. ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कैरेक्टराइज्ड of meiosis is characterized as what? Synaptonymal complex. Now what does the word mean? Synaptonymal complex. Synaptonymal complex means हमारे पास जो पेयरिंग कराता है that protein और that complex is known as so. तो bivalents जब बनते हैं तो this helps in formation of the bivalents. वो continues, it remains there. but अभी मैंने आपको क्या बताया? homologous chromosome में जब recombination हो रहा है, what is this? The sites at which crossing over occurs. crossing over होगा, ये help करेगा and क्या? Ultimately क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे. सो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. ठीक है ना? फाइन. टर्मिनलाइजेशन किसके लिए? कियाज्मेटा के लिए. कब होता हमारे पास में? कहां पर हो गया हमारे पास में? डायकाइनेसिस का स्टार्टिंग में. सो दैट इज नॉट द आंसर. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. कहां पर है? पेकाइटिन स्टेज में. match the stage of meiosis in column 1 and 2. let's go for it again. थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसको भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. let's go for it. इसको भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. कोई बात नहीं, आपको पेपर करने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा. फर्स्ट पेकाइटिन स्टेज. पेकाइटिन स्टेज अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर मुझको दिखाई दिया 3 में. सो ए का किससे मैच करूंगी? 3 से. दिस इज ए. नेक्स्ट मेटाफेज. अभी मैंने आपको बताया मेटाफेज में क्या होता है? अलाइनमेंट होता है. कम टू द सेंटर ऑफ द सेल. तो व्हाट इज दिस? क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट. सो ऑप्शन नंबर 4.
Diakinesis. Diakinesis is the last stage of the prophase. तो let's go for it. क्या है हमारे पास में? एक तो terminalization of chiasmata, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, and therefore the answer for the C option is what? The option number 2. That means जो chiasmata है, what is chiasmata? Chiasmata is the X-shaped structure where crossing over had occurred. पेकाइटिन स्टेज में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है, इन द डिप्लोटिन स्टेज हमारे पास chiasmata बनता है, इन द डायकाइनेसिस स्टेज chiasmata खत्म हो रहा है, terminalization of it. So that is the answer for it. Zygote stage, what happens out here? Pairing of the homologous chromosome takes place, that is the bivalent formation. So that is option number 1. So therefore the answer out here happens with 3, 4, 2, 1. Option number A, that is it. Fine. चलिए. Look at the figure and find out which stage it is. अब ये देखो, ये मेरे पास दोनों क्या है? Homologous chromosome. What do you mean by the word homologous chromosome? That means एक मम्मी का chromosome एक पापा का है, and that should be the same. That means the genes which are present on this chromosome should be the same gene present on this. डोमिनेंट रिसेसिव हो सकता है, बट जीन्स तो सेम ही है. तो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या है? These are said to be sister chromatids. ठीक है ना? और वो क्या है? ये दोनों भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है ना? अब हमने क्या किया? इन दोनों को क्रॉस किया. अब देखो, इसका पोर्शन इससे गया, इसका पोर्शन यहाँ पे गया. व्हाट इज दिस? एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन व्हाट? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ व्हाट? होमोलोगस क्रोमोसोम. उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. सो दैट मींस दिस इज क्रॉसिंग ओवर. And do we have crossing over in case of mitosis? नहीं. Where do you have crossing over? In case of meiosis. और meiosis में भी कहाँ होता है? Prophase 1. Prophase 1 में भी कहाँ होता है? Pectitin. तो let's see the options now. Prophase 1 during meiosis, सीधा कहानी खत्म. Prophase 2 during meiosis, no, Prophase 2 में नहीं होता. Prophase 2 is similar to the prophase of the mitosis. In fact, meiosis 2 is similar to the mitosis. Prophase of mitosis, ये दोनों तो एक ही हो जाते हैं. Both prophase and metaphase of this, no. The answer for the question 1, 2, 2 happens to be the A option. Clear? Synapses. What is synapses? Pairing. The two chromosomes come closer to each other. Pair करते हैं. Pair से synapses results in the formation of bivalents. और कौन करवाता है? Synaptonymal complex. The pairing is known as bivalent. करवाता कौन है? Synaptonymal complex. स्टेज को क्या बोलते हैं? Synapses. और कब होती है? zygote स्टेज में. So let's go for it. It's between mRNA and the ribosomes. अगर थोड़ा सा बढ़ जाओ, many ribosome with the messenger RNA is known as what? Polysome. But otherwise ये कब contact करते हैं एक दूसरे से? Translation में. तो उसको मैं synapses नहीं बोल सकती. Spindle fibers and the centromere, no. Spindle fibers are attached to the kinetochore actually. और वो भी इसके साथ में synapses का कुछ लेना देना नहीं है. ये attachment में, alignment में काम आता है, इवन सेपरेशन में आता है. सो दिस इज नॉट द आंसर. तो हुआ किसने? ऑब्वियसली 2 होमोलोगस क्रोमोसोम. जानबूझ के 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी लिख के दे सकते हैं. दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम, पैटर्नल एंड मैटरनल दोनों क्रोमोसोम के बीच में, व्हिच आर कैरिंग द सेम जीन्स. सो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. मेल एंड फीमेल गैमेट्स से कुछ लेना देना नहीं है, तो दैट इज गॉन. सो आंसर फॉर 123 हैपेंस टू बी सी ऑप्शन. 124 assertion. Cell is a fundamental, structural and functional unit of all the living organism. Very correct. All the unicellular organisms are capable of, that means unicellular organism भी अकेला रह सकता है. Independent existence. Why? कैसे इंडिपेंडेंट रह सकता है? Because they perform essential functions of life. वो पूरा का पूरा हर काम कर सकते हैं. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living, which is very correct. But less than a cell क्या हो सकता है? न्यूक्लियस हो सकता है. क्या ना न्यूक्लियस अकेला रह सकता है? नो. उससे छोटा क्या हो सकता है? क्रोमोसोम. क्या वो रह सकता है अकेला? नो. उससे छोटा क्या हो सकता है हमारे पास में? उससे छोटा कौन हो सकता है? डीएनए. तो कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाता है. ओनली जब हमारे पास सेल बन जाता है, वहां से हमारे पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आता है. वो सारा स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ कर जाता है. सो ये इसका रीजन करेक्ट है. सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट एंड यस, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी. नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन में हमारे को प्रॉब्लम आती है, बट दिस इज करेक्ट आउट हियर. Okay, the answer for 124 happens to be the A option. 125.
Which structure performs the function of mitochondria in the bacteria? ना, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक तो अच्छा पहले न्यूक्लियोइड होता क्या न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड इज द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स. उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं बिकॉज इट्स अ प्रो न्यूक्लियस, नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बट एक एरिया है जहां पे हमारे पास क्रोमोसोम होता है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं. So this cannot be the answer. वो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा. राइबोसोम्स होता है, but राइबोसोम्स are meant for what? प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो भी ये काम नहीं करेगा. सेल वॉल का बहुत फंक्शन है. इट्स अ डेड मेम्ब्रेन, इट्स अ परमेबल मेम्ब्रेन. ग्रोथ में क्या कहते हैं हमारे पास प्रोटेक्शन करता है डैमेज से, इन्फेक्शन से, सब कुछ राइट है. बट अब बच्चा मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन व्हाट? रेस्पिरेशन. तो डू द बैक्टीरिया अंडरगो रेस्पिरेशन? ऑब्वियसली यस. किससे करता है? मेसोसोम्स. व्हाट आर मेसोसोम्स? मेसोसोम्स आर द इन्वेजिनेशंस ऑफ द बैक्टीरिया. सेल मेम्ब्रेन ये आपके पास बनाया है, 3 टाइप्स का होता है. कौन कौन सा? ट्यूबुलर, वेसिकुलर, लैमेलर, एंड दैट गोस फॉर व्हाट? रेस्पिरेशन. इसके पास भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, चल. द आंसर हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. अनलाइक आपका सीपीटी में आपके पास बहुत टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 स्मॉल चैप्टर्स है, तो आपको क्वाइट सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे. नेक्स्ट 126. इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड. सबसे पहले प्लाज्मिड होता क्या है? ये मेरे पास बैक्टीरियल सेल है, ये मेरे पास न्यूक्लियोइड है, ये मेरे पास प्लाज्मिड है. अगर देखो तो एग्जैक्टली सिमिलर उसके जैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, बट थोड़ा छोटा है. इसको हम मिनी क्रोमोसोम भी बोलते हैं. दिस मिनी क्रोमोसोम इज सेड टू बी प्लाज्मिड. दैट मीन्स न्यूक्लियस को छोड़ के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड. Plasmid is not seen in case of eukaryotes. So what is this extra chromosomal material is said to be what? The answer for that. Is this the main DNA? No. The main DNA is what? This nuclear portion. Next, non-functional DNA? No. Functional है because बहुत काम करते हैं. If I talk about the examples of it, we are having F plasmid. क्या करता है F plasmid? Fertilization. R plasmid क्या करता है हमारे पास में? रेसिस्टेंस. तो काम तो कर ही रहा है ना? किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस? अगेंस्ट द एंटीबायोटिक. रिपीटेटिव डीएनए जीन्स? नो, नॉट रिपीटेटिव. सो द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द ऑप्शन नंबर A, एंड दैट इज सो. क्वेश्चन नंबर 127. Assertion. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. Obviously nucleus है and that is a membrane bound structure. ठीक है ना? डबल मेम्ब्रेन होता है, एक भी नहीं, डबल मेम्ब्रेन. राइट है, दिस इज करेक्ट. द न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल. ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. करेक्ट. डीएनए ओनली, यहाँ पे मार खा गया. जेनेटिक मटेरियल हमारे पास है क्रोमोसोम के फॉर्म में. क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम, प्रोटीन. बट जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए, आरएनए दोनों है. आरएनए बहुत कम होता बट होता है. सो दिस मेक्स इट रॉन्ग. So therefore the answer for that is the assertion is true and the reason is false. The answer is option number C. चलिए देखिए अगेन assertion reasoning. Polar molecules को मैंने आपको क्या बताया? हाइड्रोफिलिक requires a carrier protein of the cell membrane to facilitate their transport across the membrane. Cell membrane is selectively permeable. तो किसको अंदर जाने देता, किसको नहीं जाने देता? हाइड्रोफिलिक को जाने नहीं देता. तो किसको जाने देता? लिपोफिलिक को, बिकॉज द मिडिल पार्ट ऑफ दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? फॉस्फोलिपिड्स. तो लिपिड को जाने देगा. बट अगर कोई हाइड्रोफिलिक है उसको तो जाना है, पर कैसे जाएगा? इट इज गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स. तो मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के दिया है. ये फॉस्फोलिपिड्स है, ये मेरे पास पोलर एंड है, बट बीच वाला एंड क्या है? नॉन पोलर है. तो यहां से मेरे पास जो है अंदर जाने नहीं देगा पोलर को या हाइड्रोफिलिक को. तो मेरे पास कौन आ गया? प्रोटीन्स. यहां से प्रोटीन आया, ये प्रोटीन लेके जाएगा. So what are these known as the carriers? तो polar molecules cannot pass through the non-polar. This is non-polar. ये non-polar है, bilayer है यहाँ पे. It cannot pass through that, which is correct. तो कौन help कर रहा है? It is the क्या कहते हैं proteins which are helping in that. So what is this answer for that? Both assertion and reason are correct, and it is the correct explanation of this. That means ये कैसे जाएगा? उसकी help से, क्योंकि खुद से जा नहीं सकता तो वो उसको help करके लेके आ रहा है. The answer for that happens to be the A option. ठीक है, चलो.
129 in plants as well as animals, अब दोनों में है. Ribosomes are found within the plastids. In plants as well as animals, the ribosomes are found within the plastids. I hope you are aware, plastids जो है animals में नहीं होता है. So ये आंसर करेक्ट होगा ही नहीं. So this is a wrong answer. Plants में ठीक है, ribosomes होता है इसके अंदर 70S वाला. Cilia is made up of flagellin protein. तो हमारे पास cilia is made up of flagellin protein. सबसे पहले हमारे पास किसके अंदर हमने क्या बोला था? Flagella cilia हमारे पास normally plants के अंदर में हमारे पास नहीं होता है. So where do you have that? You have that in animals. Only certain lower plants can have it. जैसे हमारे पास algae सब, otherwise नहीं है. So this is again not seen in case of plants. ठीक है ना? Next. Plasma membrane is lipoproteinaceous in nature. Yes, plasma membrane is lipoproteinaceous in nature. हमारे पास अंदर में क्या है? लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स, बाहर में क्या? प्रोटीन है. This is correct. Cell wall protects the cell from mechanical damage. Yes, हमारे पास सेल, अच्छा लाइन तो राइट है, पर क्या रॉन्ग है? यहाँ पे सेल वॉल जो है प्रोटेक्ट करती है, बट कहाँ पे? इन केस ऑफ प्लांट्स, नॉट इन एनिमल्स. तो हमारे पास में पढ़ने में देखो, जैसे मैंने भी पढ़ लिया एक बार, दिस इज राइट लाइन, बट कहाँ पे? एनिमल्स के अंदर नहीं होता है. सो द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी, इसको पकड़ना है ये दोनों को. द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर सी. ये नहीं कि पढ़ के सीधा लास्ट वाला पढ़े और उसको राइट कर दिया, नो, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा. The complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is known as what? अभी similar type of question था, उसी को ऊपर नीचे घुमा के कर दिया, लैंग्वेज चेंज करके. What is a complex formed by a pair of synapse homologous chromosome known as bivalence? Synapses कर लिया. कहाँ पे बना मेरे पास? Zygote में. Again, सिर्फ आंसर देख के काम नहीं चलेगा. Read the other options. Exoneme. What is this? सोचो. This is the core of the flagella. What is this? The core of the flagella. जो हम flagella का structure बोलते हैं. Could you please tell me the flagella का organization? Eukaryotic flagella का organization. What is that known as? 9+2. किसका बना है? Microtubules. तो वो किसका है? Exoneme में ही, core में है. तो this you should be aware. Equatorial plate obviously नहीं है. And kinetochore. What is kinetochore? जो centromere है, surrounding it is a disc-like structure जहाँ पे हमारे पास में spindle fiber attach करते हैं. ठीक है? So that is kinetochore. The answer for 130 happens to be the A option, which is known as bivalence. Clear? चलो. 131. Cell growth. What is cell growth? Cytoplasmic growth. It's a continuous process. Very correct. ये तभी तो हमारे पास में क्या होता है? Nucleoplasm cytoplasmic ratio is क्या? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना? Disbalanced out here. Right है. DNA synthesis occurs only during a specific stage in the entire cell cycle. Yes, this is correct. कहाँ पे होता है? पूरे cell cycle में. Cell cycle में ही होता है. कहाँ पे? S phase में. So this line is also correct. But क्या इसका कुछ लेना देना उससे है? No. So that means ये it's not the correct explanation. Both of these are correct, but this is not the correct explanation for that. So answer for that happens to be the B option. ठीक है? चलिए. 132. Arrange the following events of the meiosis in correct sequence. Go for it. अब जब हमारे पास में meiosis है और इसके sequences को देखना है तो चलो let's go for it. सबसे पहले हमारे पास में हम लोग अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं जाऊंगी कहाँ पर? I'll start with leptotin. Leptotin में क्या? Condensation starts. तो यहाँ पे कहीं condensation नहीं लिखा. फिर मेरे पास bivalents बनते हैं, synapses होती है, तो this is the first option for me. फिर उसके बाद में मेरे पास क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है. सो दैट इज द सेकंड ऑप्शन फॉर मी, बिकॉज ये कहाँ पे हो रहा है? ये जाइगोटिन में हो रहा है. ठीक है ना? ये मेरे पास कहाँ पर हो रहा है? पेकाइटिन में हो रहा है. फिर मेरे पास टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैज़मेटा कहाँ पर हो रहा है? ये मेरे पास डायाकाइनेसिस में हो रहा है, बट डायाकाइनेसिस के शुरू में हो रहा है. फिर मेरे पास क्या हो रहा है? डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है प्रोफेज के एंड में, एंड डायकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज, बट ये उसके पीछे होता है. सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन एंड दिस इज द फोर्थ ऑप्शन. दैट मीन्स ये दोनों ही डायकाइनेसिस में है, बट ये पहले ये बाद में. तो मेरे पास आंसर क्या हुआ? 2. दिस इज द फर्स्ट पोर्शन. तो क्या हुआ? 2, पहला 2 हो गया, फिर मेरे पास 1 हो गया, फिर मेरे पास 3 हो गया, फिर मेरे पास 4 हो गया. तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर इट. क्या? चलिए. 133. इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द रूट टिप्स,
ऑफ अनियन, रूट टिप ऑफ अनियन किसके लिए बेस्ट मटेरियल है टू स्टडी माइटोसिस? तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक आ जाता है माइटोसिस पढ़ने के लिए, माइटोसिस का स्टेजेस पढ़ने के लिए, विच इज द बेस्ट मटेरियल इज व्हाट? अनियन रूट टिप। टिप क्यों लिया हमने? बिकॉज वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। नेक्स्ट, in your class and asked to count the chromosomes, अब क्रोमोसोम काउंट करना है तो that means क्रोमोसोम should be distinct out here। तो सबसे कंडेंस्ड क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? These are most condensed in the metaphase stage। तो अब कहाँ पे काउंट कर सकते हैं? Obviously the metaphase stage। The answer for 133 happens to be the A option। ठीक है, चलिए, the correct sequence of the phases of the cell cycle is, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डायग्राम बना के, आई एम रीड्रॉइंग दैट फॉर यू। जैसे भी आप बना लो, ऐसे बना लो, दिस इज G1, दिस इज S, दिस इज G2, दिस इज M, कैसे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारे पास में अगर मैं सेल साइकिल स्टार्ट करती हूँ, पहले माइटोसिस तो नहीं होता है, पहले इंटरफेस होता है। दैट मीन्स पहले हमारे पास प्रिपरेशन होती है, तो प्रिपरेशन में पहला G1 आता है, फिर S, फिर G2, फिर उसके बाद माइटोसिस। द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द D ऑप्शन। ये तो माइटोसिस आगे पीछे लिखा है, तो अगर आपको दिखता है ये फिर रॉन्ग आ गया यहाँ से, तो G1 के बाद में ये बीच में रॉन्ग आ गया, तो S G1 ये फिर से रॉन्ग आ गया। वैसे तो सर्कल है, कहीं से भी हो सकता है। सीक्वेंस वाइज अगर मैं जाती हूँ, फर्स्ट स्टेजेस इज दिस, सो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। 135 assertion, meiotic divisions are very important for evolution of species। obviously अगर meiosis नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा तो evolution नहीं होगा। so that is very correct। meiosis increases the genetic variability। obviously क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वेरिएशन आया in the population of organism from one generation to the other, so automatically that leads to this। so this is correct and so is this correct। ये यहाँ पे इसने वेरिएशन लिखा है, तो वेरिएशंस के साथ में हमारे पास में इवोल्यूशन आया, so ये दोनों एक दूसरे कोरिलेटेड हैं, तो both of these are correct and correct explanation for this। the answer for the question happens to be the A option। Section B, we start with 136, during which phase or phases, that means it may be more than one answer, of the cell cycle the amount of DNA in the cell remains 4C level if the initial amount of that is 2C। हम सबको पता है ड्यूरिंग द सेल साइकिल, स्पेशली ड्यूरिंग द इंटरफेस, द डीएनए डुप्लीकेशन अकर्स। ठीक है ना। अब हमारे पास डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए बोला, ओरिजिनली एक क्या होता है 2C होता है, अब ये मेरे पास 4C बन गया। हम सबको पता है कब होता है वो, ड्यूरिंग द एस फेज। बट एस फेज में पूरा कब कंप्लीट हुआ, बाय द एंड हो सकता है, स्टार्टिंग हो सकता है, तो लेट्स सी टू दैट। बट वी आर श्योर दैट ये 4C कहां बना, G2 में तो है ही, G1 में ये है, ये इंटरमीडिएट है। तो लेट्स सी द आंसर्स। G0 एंड G1 ऑब्वियसली नो, G0 में और G1 में तो होता ही नहीं, G1 में नहीं, S में हो रहा है, बट इफ आई राइट वर्ड एंड ऑफ S दैट इज करेक्ट, बट G1 में तो होता नहीं, सो दिस इज आल्सो गॉन। ओनली G2 व्हिच इज करेक्ट। G2 एंड M के अंदर में तो मेरे पास क्या हो जाता है, ओरिजिनल वाला हो जाता है, तो दैट मींस whatever is the original number, इक्वेशनल डिवीजन हो रही है तो 2C का 2C जाता है, so this is again wrong। the answer for the question happens to be, the answer is the C option। क्लियर। M में फिर से बोल रही हूँ, what is this इक्वेशनल डिवीजन, मम्मी में अगर 2C था तो दोनों बच्चे में भी 2C ही आएगा। 137, bacterial cells may be motile or non-motile। yes, they can be motile, they may be non-motile। flagella होता है, cilia नहीं होता है, which is correct। Motile bacterial cells have thin filamentous extensions from their cell wall, ठीक है, called flagella, correct। The bacteria shows a range in the number and the arrangement of the flagella। yes, flagella is not equal, you may have the flagella, trichus नहीं है तो atrichus, you may have one flagella, you may have two flagella, you may have many flagella, which is correct। but is this the explanation of that? no, both of these are correct, but this is not the correct explanation of that। therefore the answer for this happens to be the B option। ठीक है, उसका सिर्फ बताया कि मोटाइल नॉन मोटाइल है, इसमें नॉन मोटाइल के बारे में कुछ नहीं लिखा, नंबर ऐसा है कुछ नहीं लिखा, तो दैट इज व्हाई इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। 138, mitosis is usually restricted to diploid cells। correct, it is restricted to diploid cells। कोई certain हमारे पास lower plants may have that in the diploid cells, और उस साइड हमारे पास हनी बी जो है ना, वहां कौन है, ड्रोन, उसमें हो सकता है, तो दिस इज करेक्ट।
In some lower plants and some social insects, haploid cells also divide by mitosis, which is correct. But is this explaining that? No. So both of these are correct, but it's not a correct explanation out here. So therefore the answer for 138 happens to be the B option. Fine. 139. The homologous chromosome separate during anaphase 1. Right? Homologous chromosome separate during anaphase 1. ठीक करते हैं. That means a maternal paternal दोनों अलग-अलग हो जाते हैं. Because उसको reductional division बोलते हैं. During anaphase 1, sister chromatids remain associated at their centromeres, which is correct. But अगर ये बताता क्यों वो separate हो रहे तब उसका explanation होता. But यहाँ पे दोनों correct है, but this is not the correct explanation for this. ये बोल रहा है यहाँ पर है, ये दोनों attached रहते, correct है. But वो क्यों हो रहा नहीं बताया. That is why it is not the correct explanation of the assertion out here. Therefore, the answer for that happens to be the B option. How many meiosis are required to form 1000 pollen grains from microspore mother cell? सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको हम पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, मियोसिस करता है और कितना माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बनाता है? 4. ठीक है, 4 पोलन ग्रेन्स का माइक्रोस्पोर बनाता है. तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब मेरे पास कितना है? 1000 बनाना है मेरे को ये पोलन ग्रेन्स. 1000 पोलन ग्रेन बनाने के लिए मेरे पास में कितना मेयोटिक डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड? ऑब्वियसली आई डिवाइड दैट बाय 4. तो आंसर व्हिच आई गेट इज 250. सो 250 मेयोटिक डिवीजन्स करूंगी तो आई एम गोइंग टू गेट 1000 माइक्रोस्पोर्स और द पोलन ग्रेन. द आंसर फॉर 140 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. फाइन. 141. Pectitin phase of the meiosis is characterized by, pectitin is again what the crossing over stage. Let's see to that. Synapses, no. कहाँ पर हो रहा है? Zygote. Tetrads are clearly visible. Yes, tetrads are clearly visible. But NCERT ने लिखा tetrads are also formed during the bivalent stage. But फिर next line में pectitin में clearly visible कहाँ पे लिख दिया उसने? Pectitin. ठीक है ना? This is correct. Appearance of recombination nodules, हमारे पास में recombination nodules बनते हैं during the ये fine है pectitin stage. Exchange of genetic material भी होता है between the non-homologous chromosome. देखो यहाँ पे word लगा दिया non-homologous, so that makes it wrong. Therefore, the answer for 141 happens to be B and C is the correct answer for it. Okay? Many questions are from zygote, pectitin, but आपने देखा होगा सब में अलग-अलग options है, अलग-अलग type का question है, but word is similar out here. Next. A E cell can progress through the cell cycle in. एक E cell है, उसको कितना टाइम लगता है for cell cycle? ये तो सीधा याद करने का क्वेश्चन है, which is 90 minutes. But अगर मेरे पास ऑप्शन 24 hours होता तो क्या क्वेश्चन में होता है? तो 24 hours होता तो मेरे पास क्या होता क्वेश्चन में? ह्यूमन बीइंग या यूकैरियोटिक सेल. तो यहाँ पर मेरे पास आंसर, अगर मैं यूकैरियोटिक और टिपिकल ह्यूमन बीइंग्स का सेल बोलती तो हमारे पास क्या है? 24 hours होता. ठीक है. The answer for this question happens to be the C option. नेक्स्ट, बाइवेलेंट क्रोमोसोम. अभी फिर आपको बाइवेलेंट, बट इस बार बाइवेलेंट इज नॉट रिलेटेड विद ज़ाइगोटिन. तो देखते हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन. अलाइन मतलब क्या? मेटाफेज. तो इस बार मैंने वो दोनों क्वेश्चंस को मिला दिया. अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग व्हाट? ऑब्वियसली ड्यूरिंग व्हाट? मेटाफेज होता है हमारे पास. ठीक है, मेटाफेज तो है ही. ऑफ क्या? अब मेरे पास लिख दिया उसने. अच्छा, मेटाफेज में भी मेटाफेज 1 and 2 लिख दिया. लेट्स गो फॉर इट. प्रोफेज इज गॉन. अब मेटाफेज तीनों के तीनों, मेटाफेज माइटोसिस, मेटाफेज 2 मियोसिस. आपको हिंट पहले ही दिया गया था, ये दोनों सेम होते हैं. मेटाफेज 1 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज मैंने क्या वर्ड लगा दिया? बाइवेलेंट. जब तक हमारे पास मेटाफेज 2 होता है, बाइवेलेंस नहीं होता है, सब एक क्रोमोसोम पे अरेंज होता है, सेम टू सेम आउट हियर. सो दैट इज व्हाट? मेटाफेज 1 ऑफ व्हाट? इट शुड बी व्हाट? मियोसिस. तो आपको हिंट ऐसे भी याद है, 2 इज इक्वल टू द माइटोसिस, तो ये आंसर उसका नहीं हो सकता. ओके, सो द आंसर फॉर दैट इज बी ऑप्शन. 144. Which of the following nucleic acid is present in the organisms having 70S ribosomes only? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 70S राइबोसोम होता किस किस में? बैक्टीरिया में होता है. फिर किस में बताया आपको? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. फिर किस में बताया आपको मैंने? क्लोरोप्लास्ट में होता है. इन सबके पास में 70S राइबोसोम्स हैं.
अब इनके पास न्यूक्लिक एसिड कैसी है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विद द हिस्टोन, ये यहां तक करेक्ट है, विद द करेक्ट, बट क्या रॉन्ग है, विद क्या, हिस्टोन, हिस्टोन नहीं प्रेजेंट होते. व्हाट आर हिस्टोन, बेसिक प्रोटीन हेल्पिंग इन कॉलिंग, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद प्रोटीन कोड, नो, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. प्रोटीन कोड जैसे तो वायरस के अंदर वर्ड है, रॉन्ग है. डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, व्हाट डज द वर्ड नेकेड डीएनए मीन, दैट मीन्स एक तो हिस्टोन नहीं है इसके पास में, सो दैट इज वाई, बट इसमें सब्स्टिट्यूट जरूर है, व्हाट इज दैट नोन एज पॉलीअमाइन्स, सो दैट इज द आंसर. डबल स्टैंडर्ड बट हिस्टोन नहीं है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए एनक्लोज इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सो दैट इज अगेन रॉन्ग. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. 145, let's talk about that. It's talking about the chromosome number and the DNA amount. This is the G1, this is the G2. बीच में S phase में हमारे पास duplication of the DNA occurs but chromosome do not duplicate. तो पहला word इसने लिखा pollen grain. Pollen grain जो कि haploid होता है, in the G1 phase it's having कितना? It is having कितना chromosomes? 10 chromosomes है and कितना pgDNA है? 5 pgDNA. Fine with this? Automatically उसके मदर सेल के पास, इफ आई टॉक अबाउट पोलन ग्रेन मदर सेल PMC, उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितना होगा, 20 होगा, एंड उसके बाद डीएनए कितना होगा, 10. बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट उसी का अगर क्रोमोसोम कितना हो गया, यहाँ पे 10 ही रहेगा और कितना पीजी हो जाएगा, 10 पीजी. बट व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट पोलन मदर सेल का कितना हुआ G2 में, तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम कितना रहेगा, 20 ही रहेगा, बट दिस डुप्लीकेट्स आउट हियर, तो आंसर हैपेंस टू बी 20 pg. अदरवाइज आप सीधा कर सकते हैं आंसर, बट आंसर इज व्हाट, ए ऑप्शन. व्हाट इज इट, फिर से देख लीजिए, डीएनए अमाउंट इन द पोलन मदर सेल ऑफ द G2 फेज, मतलब आपको पोलन मदर सेल का G2 फेज का ढूंढना है. If the pollen grain has what, 10 chromosomes, pollen grain के पास कितना, 10 chromosomes है, pgDNA कितना, इतना है, तो क्या हो गया, उसको नहीं भी करो, डायरेक्टली इसको लिखो यहाँ पे, और ढूंढने कब देख रहा है, इन द G2 phase, तो हमारे पास आंसर क्या है, 20/20. The answer for this question happens to be the A option. ठीक है, चलिए, I hope no confusion with that. 146, which of the following statement are related with the first phase of karyokinesis in the mitosis? That means they are talking about what, prophase. Morphology of the chromosome can be studied easily, most easily studied. Is this possible? अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था, this is seen in metaphase. ठीक है ना? So this is not the first phase which is known as what, prophase. Centriole which had undergone duplication कब होता है, S phase में, begins to move towards the opposite poles of the cell, which is very correct. यहाँ पे होता है प्रोफेज में. न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम reforms, no, disappears. reforms कहाँ पे करता है, टीलोफेज में, तो यहाँ पे क्या है, disappears. Wrong हो गया ये. Next, the initiation of the condensation of the chromosomal material. Yes, initiation यहाँ पर होता है, coiling करना शुरू करता है, which is correct. Therefore, the answer for this happens to be B and D, the option number B. 147, microtubules. Microtubules is basically the proteinaceous part. क्या करता है, it's a part of what, cytoskeleton. ठीक है, and cytoskeleton is the cell का skeleton, proteinaceous in nature and present only in the eukaryotes. Constitute what, centrioles बनाता है सेंट्रियोल को, यस. स्पिंडल फाइबर्स, यस. क्रोमेटिन, नो. सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, नो. सेंट्रियोल, यस, ये दोनों तो ठीक है एक साथ. सिलिया, फ्लैजिला, पेरोक्सिसोम, नो. स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सिलिया, यस. सिलिया को मैं फ्लैजिला भी बोल सकती हूँ, सो विच इज करेक्ट. द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर डी. 148, how many features given are associated with the chloroplast? Chloroplast का features है. Chloroplast क्या plants में present होता है, double membrane structure, photosynthesis कराता है, synthesis of carbohydrate correct है, proteins कैसे correct है, because ribosome है, so this is correct option. Double standard circular DNA होता है, which is correct. 70S ribosomes होता है, correct. Storage of oil and the fats, storage of oil and the fats कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं करता, कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है ना,
ल्यूकोप्लास्ट, so this is wrong. फोटोसिंथेसिस करता है, करेक्ट. तो मेरे पास कितने करेक्ट ऑप्शन हो गए? 1 2 3 4. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. क्लियर? 149. पिलाई, फिम्बरी, फ्लैजेला तीनों किसके साथ रिलेटेड है? प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियाज. प्ले अ मेजर रोल इन मोर्टेलिटी ऑफ द motility of the bacteria. This is not helping in motility. ये तो reproduction में help करता है, वो तो attachment में help करता है, which is wrong. Play again role in motility in the eukaryotic cell. Eukaryotic cell में ये होता ही नहीं है. फिर elongated tubular structures made for special phospholipids. No phospholipids से कुछ नहीं बना है ये. तो answer for this is what? Are surface structures of the bacteria. Yes. Name the surface structures of bacteria. What are these? Pili, fimbri and flagella. तो surface से बाहर आ रहा है. The answer for that happens to be the B option. Last question, 150. Assertion. Both 70S and 80S ribosomes are composed of two subunits. Yes, एक smaller subunit होता है, एक bigger subunit. Correct है. S stand for sedimentation. Correct है. मैंने आपके पास sedimentation करता है, sanctification से sedimentation पता लगता है. Which is indirect measure of density and the size, which is correct. But is this explaining that? No, that's not the explanation of that. So what is the answer for it? Both of these are correct, but this is not the correct explanation of it. So therefore the answer happens to be the B option. So here we come to the end of the solutions. So please watch the video and correct your mistakes and keep improving. All the best.